So let us study about the next part, that is the trachea. Trachea क्या होता है उससे पहले देख लेंगे. We have studied about the protective different protective cartilage that surround the larynx. Now let us study about the vocal cord present in larynx. Okay, this larynx it bears the two pairs of vocal cord. इसमें दो pairs होते हैं vocal cord के. Anterior pair of vocal cord and posterior pair of vocal cord. ठीक है, तो ये कैसे होते हैं देखिए. This larynx portion, this larynx, the wall of larynx, it is consist of elastic cartilage. ये जो larynx का जो portion है, larynx की जो wall है, ये किससे बनी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई इनकी वॉल होती है. और ये जो इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई इनकी जो वॉल है, ये it bears the two pairs of vocal cord, anterior pair of vocal cord and posterior pair of vocal cord. Anterior pair of vocal cord and posterior pair of vocal cord. The anterior pair of vocal cord, they are aphonic. Aphonic means they are not able to produce the sound. They are not help in the production of the sound. Okay. So why they are not one? Because they are not so much elastic as they get vibrate with the pressure of the air. Okay. So ये जो anterior pair of vocal cord जो present है, anterior pair of vocal cord जो present है, they are not able to produce the sound because they are rigid one, they are non-elastic one, inelastic one. जिस वजह से इनके inelastic nature की वजह से ये sound produce नहीं कर सकते हैं. Okay, then the space between this vocal cord is known as rama glottis. Okay, rama glottis. What is meant by rama glottis? The space between this vocal cord is known as rama glottis, जिसमें से air pressure से pass होता है, isn't it? The sound is produced due to the expire air, not inspire air. जो sound किस तरह की air के द्वारा sound produce होता है? Inspire या expire air? एक्सपायर एयर. ओके, एक्सपायर एयर की वजह से साउंड प्रोडक्शन होता है, और वो भी किसके वाइब्रेशन की वजह से? पोस्टीरियर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड. ओके, दिस पोस्टीरियर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड, देयर वाइब्रेशन प्रोड्यूस द साउंड. नीचे वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, बिकॉज दे आर इलास्टिक इन नेचर. ये इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं. Okay, they are articulated with the muscles present in this larynx. Larynx के wall में जो muscles होते हैं, okay, the muscles which are present in larynx, they get contract while producing sound. जब ये contract होते हैं, here, जब ये larynx के wall में present रहने वाले जब muscles contract होंगे, here, अब ये जो मसल्स है, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे इतने साइज में, सीयर, तो अब हमें बताओ, ये लैरिंक्स के वॉल में रहने वाले मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये पोस्टीरियर पेयर, जो पोस्टीरियर पेयर है वोकल कॉर्ड के, वो क्या हो जाएंगे? वो लचीले के कारण वो इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे. अपने लचीलेपन के कारण, इलास्टिक नेचर की वजह से ये फोल्ड हो जाएंगे, isn't it? इनका एरिया इंक्रीज होगा. ठीक है, और जब यहां से एयर प्रेशर से जब गुजरेगी, एक्सपायर होगी, तब इनमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा? वाइब्रेशन, और इसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा. So these are the posterior pair of vocal cords which are elastic one, and they are help in the production of the sound in human being. So ये part है vocal cord का. Okay, now larynx, the part of larynx, that is the sound box, and their pair of vocal cord we have completed. The next portion is trachea. Next portion is trachea. So what is trachea? It is known as windpipe. इस trachea को हम क्या कहते हैं? windpipe कहते हैं. This trachea, it is about 12 centimeter in length, and this trachea, it is surrounded with incompletely C-shaped hyaline or white fibrous connective tissue
कार्टिलेज सियर। सो ये जो ट्रकिया होता है, दिस ट्रकिया दे आर कवर्ड विथ हाइलिन सी शेप कार्टिलेज। इस ट्रकिया में सियर, ये जो ट्रकिया होता है इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना सेंटीमीटर होता है? 12 सेंटीमीटर। और ऑल अलोंग देयर लेंथ दे आर सराउंडिंग विथ ए इनकम्प्लीटली C-shape incomplete ring or C-shape ring of hyaline cartilage, incomplete ring of hyaline cartilage, C-shape hyaline cartilage की रिंग होती है। कहां पर? इस ट्रकिया को कवर करती है। What is their function? What is their function? They avoid the collapsing of trachea. Okay, ये इस ट्रकिया की कोलैप्सिंग नहीं होने देती, isn't it? क्योंकि इस ट्रकिया के थ्रू जो एयर पास होती है, इंस्पायर या एक्सपायर होती है, ये फोर्सफुली इंस्पायर या एक्सपायर होती है। ओके, फोर्सफुल एयर इन या फिर एयर आउटसाइड, दिस प्रोसीजर इज टेकिंग प्लेस थ्रू द ट्रकिया सो दैट अंडर दिस प्रेशर दिस ट्रकिया इट मे गेट कोलैप्स। Therefore, to avoiding this collapsing, these trachea they remain covered with the C-shaped hyaline cartilaginous ring. Hyaline cartilaginous ring की वजह से ये completely surrounded होते हैं। Okay. So next one. अगला point, if we take the TS of trachea, internally it is consists of 4 different layers. It is surrounded with 4 different layers. ये जो ट्रकिया होता है, अगर हमने इस ट्रकिया का सेक्शन अगर हम लेते हैं तो हमें 4 डिफरेंट लेयर नजर आएगा। कौन सा? म्यूकोसा सियर, सबसे इनर मोस्ट होगी लेयर म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर, देन सब म्यूकोसा, म्यूकोसा सियर। यहां पर हम इसका टीएस ड्रॉ कर रहे हैं, आगे फिर हम ड्रॉ करेंगे बाकी के स्ट्रक्चर। सियर, so mucosa, submucosa, then cartilaginous ring, then tunica adventitia, cartilage ring and tunica adventitia. And tunica adventitia. क्या होता है? सियर, अगर हम ट्रकिया को अगर सेक्शन में देखते हैं तो इट इज सराउंडेड विद डिफरेंट लेयर। कौन कौन से? इनर मोस्ट म्यूकोसा, इट इज कवर्ड विद सब म्यूकोसा, देन इट इज सराउंडेड विद सी शेप हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग, then and lastly outermost covering of white fibrous connective tissue, that is tunica adventitia. This is the structure. Internally these different layers they protect this trachea. Then this mucosa part, ये जो mucosa part है, इस mucosa part में भी it is covered with 3 different lining. इसमें 3 different lining होते हैं। कौन कौन से? सबसे inner most इसकी जो lining होती है that is consist of द इपिथेलियल लाइनिंग। सबसे इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है इस म्यूकोसा की वो होती है इपिथेलियल लाइनिंग। और इसमें किस तरह के इपिथेलियल होते हैं? सुडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार ग्लैंडुलर इपिथेलियल लाइनिंग। कौन से? सुडो स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है ये। ओके, ये क्या होती है? ये हमने आपको बताया था। ये जो इपिथेलियल की जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग में ये सुडो स्ट्रैटिफाइड लाइनिंग है। किस तरह की लाइनिंग है? इट इज द लाइनिंग ऑफ सुडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग। सो दिस म्यूकोसा लाइनिंग इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर। ये म्यूकोसा जो होती है ये 3 डिफरेंट लेयर की बनी है। सबसे इनर मोस्ट जो लाइनिंग होती है वो इपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। किस तरह के इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं यहाँ पर?
pseudostratified ciliated columnar glandular epithelial tissue, यानी pseudostratified epithelium की लाइनिंग। सेकेंड वन, वहां के एपिथेलियल का शेप कैसे है? कॉलमनार है। कॉलमनार तो है ही है। कॉलमनार के दो मॉडिफिकेशन होते हैं, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। गोबलेट सेल, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। सिलिएटेड एपिथेलियल कॉलमनार टिश्यू कैसे होते हैं? ये सिलिया। देन ग्लैंडुलर कैसे होते हैं? दिस वन इज गोबलेट सेल। सो ग्लैंडुलर, सिलिएटेड, कॉलमनार, pseudostratified epithelial tissue यहाँ प्रेजेंट होते हैं। What is their function? This goblet cell it secretes the mucosa. ये जो है it secretes the mucus, ये mucus secrete करता है, and this mucus it spread all along the lining of trachea as well as larynx. इसे moist रखता है, ये complete moist रखता है ये mucus, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी पैथोजन है वो उस म्यूकस से क्या हो जाए? ठीक हो जाए, और वहां पर किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से। देन सेकेंड वन, दिस सिलिया। सिलिया का क्या काम है? द सिलिया दे कंटिन्यूअसली प्रोपेल द थिक पार्ट ऑफ सॉइल और पैथोजन आउटसाइड द बॉडी, ओके, थ्रू ओरल कैविटी और नेसल कैविटी। ठीक है, तो ये जो सिलिया होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये जो सिलिया होते हैं वो इस ट्रकिया में जमा हुआ जो स्टिकी सब्सटेंस है उसे बाहर प्रोपेल करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया स्टिक हुए रह सकते हैं, या सॉइल पार्टिकल स्टिक हुए रहते हैं, या एनी अदर एक्सक्रीटरी पार्टिकल रह सकते हैं। ओके, जो कंटिन्यूअसली बीट करते हुए ये सिलिया उस म्यूकस को हमारे बॉडी के बाहर क्या करते हैं? प्रोपेलिंग करते हैं। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस एपिथेलियल लाइनिंग। देन सेकेंड लाइनिंग इज, ये होती है प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया लाइनिंग। कौन सी? लैमिना प्रोप्रिया। ये एसेलुलर लेयर होता है, ओके, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ। देन इसके बाद होती है मसल। The longitudinal muscle, circular and longitudinal muscle lining is present surrounding this lamina propria, and due to these muscles, this trachea it get dilate when air pressure, under the air pressure here, when this pressure is created due to the exhalation, the diameter of this trachea get increased. Okay, then again this diameter get again retain their original position. Okay, here, तो ये जो मस्कुलर यहाँ पर जो लेयर है वो इस ट्रकिया की डायमीटर को बढ़ाता है, वापस नॉर्मल होने देता है, लचीला बना देता है, ताकि ये कोलैप्स ना हो सके। प्रेशर अगर एयर का होगा तब ये डायमीटर बढ़ जाएगा प्रेशर की वजह से, जब प्रेशर नहीं होगा तब नॉर्मल साइज में रहेगा ट्रकिया का। ओके, तो इस तरह से ये डिफरेंट लेयर यहाँ पर काम करती है। देन इस म्यूकोसा को सराउंड करने वाला जो लेयर है वो सब म्यूकोसा है। व्हाट इज दिस? ये सब म्यूकोसा। ये क्या होता है? ये एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है। एरियोलार लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार लूज कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है जो इस जगह को भरता है, खाली जगह को भरता है। ओके, स्पेस बनाकर। देन yes, after this a C shape incompletely covered hyaline cartilage surrounding this layer. Okay, इस सब म्यूकोसा को बाहर से फिर कवर करता है हाइलिन कार्टिलेज का लेयर, और उसके बाद सबसे बाहर होता है दैट इज व्हाट इज दिस? सबसे बाहर वाला लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ओके, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सो दीज आर ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रकिया। ये ट्रकिया का इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट वन पार्ट।
Okay, see here, we have seen the internal different layers of trachea. Now after that trachea, here, this trachea in thoracic cavity, it is bifurcated into two primary bronchi. ये जो ट्रकिया होता है, ये ट्रकिया थोरेसिक कैविटी में दो ब्रोंकस में ब्रोंकाई में डिवाइड होता है. इनसाइड द थोरेसिक कैविटी दिस ट्रकिया इट bifurcated into two primary bronchus. Bronchus singular, bronchi plural. Two primary bronchi. Then अगला part. So